So, my dear everyone, today we are going to start a new chapter, chapter 9, Science, class 9. That is here, what? Force and laws of motion. This is one of the very interesting chapter, and this chapter is quite relevant with the previous chapter also, because हम लोग पढ़ा था है कि नहीं motion. अगर that is clear, this chapter is obviously gonna clear, and very simple concepts are there, very interesting concepts are there, and you are very aware of the word, is not it? Force. आप लोग जानता होगा force का मतलब, is not it? Very interesting, and laws of motion. There was a scientist named Newton. He gave some laws. So based upon these laws, the world depends. You can say there is so many actions are depend upon this law. There is 3 laws we are going to discuss about. It's going to be a very interesting chapter. न्यूटन बाबा की जय. न्यूटन बाबा की जय. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है. It's not a sort of big deal, कहना इतना हार्ड है कुछ क्या होगा. Very interesting chapter है. So first of all, let us start with the term force. Let us start the first topic. It is what? Force. Okay. Now my dear, what is force? What is it? Force क्या है? Simple भाषा में आप कैसे बोलोगे इसको? Yeah, any push or pull. अगर हम मानो कि धक्का दे रहे हैं आप पे, तो क्या लगा रहा है? मैं अपना ताकत लगा रहा हूँ. I am putting some force. I am applying some pressure. Okay, pressure is not a force. Pressure is some kind of it is a derived unit of force. Pressure भी पड़ेगा. Pressure क्या है? What is pressure? Pressure is force per unit area. कि कितना इलाका पे आप force लगा रहे हैं. That is called pressure. Okay, so it's a very simple definition. If you like to say or if you like to give an answer, what is force? What we will say? Any push or pull. Any push or pull of an object is called what? Is called force. समझ में आया कि नहीं? आज जो क्लियर हुआ कि जो चीज थैल रहा है या फिर आप टान रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें? You are using a force here. तो force is mainly classified into 2 broad types. समझेगा? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि force क्या कर सकता है? What are the various application of force? What can force do? Who can say? Force has a numerous use in our daily life. बिना force का तुम एक कदम आगे भी नहीं बढ़ पाएगा. ठीक है ना? खाना तक तुम नहीं खा पाएगा तुम. What do you think? Nothing you can expect from the life. Nothing you cannot move your hand also. Force नहीं लगाएगा तो. हम लोग हर कदम, हर movement, we are against the force. धरती भी हम लोग force कर रहा है कि नहीं? And we can still stand in the earth surface. There's a force. What force that is called? That is called gravitational force, and it's really helping us to stand over the earth's surface. Otherwise, today if there is no gravity force, we would be flying. We don't have a distinct position where we can stand on or where we can occupy, where we can do our task very easily. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इट हैज़ अ क्या बोलेगा, पानी तक नहीं गिरेगा अगर फोर्स नहीं होगा तो. तुम फिल्टर खोलो, पानी तक नहीं गिरेगा. गिरेगा पानी? कैसे गिरेगा? बारिश तक नहीं टपकेगा. बारिश तक गिरे नीचे में तो क्या नहीं होगा? ब्लड सर्कुलेशन भी तकलीफ होगा बोलो तो इंसान का. खाना खाएगा वो भी अंदर नहीं घुसने तकलीफ होगा. पिसाब तक नहीं कर सके आप बिना फोर्स का. और क्या बोलेगा आप लोगों को? सांस तक नहीं ले सकेगा. इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है. मीन्स आप लिख तक नहीं सकिए. आप मीन्स यू कैनॉट थिंक एनीथिंग विदाउट द फोर्स. आप कुछ ही सोच भी नहीं सकता कि बिना फोर्स से क्या होने वाला है हमारा लाइफ. आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? क्लियर और नॉट? So my dear, force has numerous use. Some application of force. What can the force do? Force can stop the moving body. है कि नहीं? कोई बॉल आ रहा है, हम क्या फोर्स लगा दिया, रुका दिया कि नहीं इसको? क्या रुका सकता है कि नहीं फोर्स? Obviously. So force can stop a moving body. कोई गाड़ी आ रहा है चला के हम रोक दिया, हम गेट खोलिए मानो कि, या फिर कोई हल्क रोक दिया उसको. So what? How he is putting a opposite force. जैसे कि मानो कि आप एक मार्बल लिया and you started rolling in the floor. You will see after crossing some distance, मार्बल पकड़ो या बॉल पकड़ो, it will automatically stop. कैसे स्टॉप हो रहा है वो चीज़ बोलो तो? How it is stopping? What force it is? What force is that? You're rolling a whatever. You're rolling a football in a ground.
you can see after crossing some distance it automatically stops. It comes under rest. What makes it come under rest? Do you think there's any force? Yes, there is also a force. What force it is? It is a frictional force. Frictional force. And we know that frictional force is the opposing force. What is frictional force? Is the opposing force और अगेंस्टिक फोर्स हमेशा रोकना चाहता है किसी को. समझ में आ रहा है कि नहीं? आप साइकिल चला रहे, देखो साइकिल पेडल मत मारो, थोड़ा देर तक जाएगा, बट अगेन योर स्पीड ऑफ द साइकिल reduces and ultimately the cycle stops. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कुछ चमत्कार चीज सीखने वाला हमने यहाँ पे, बहुत मजा लगी है. और फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव ए रेस्ट बॉडी. फोर्स कैन मूव ए रेस्ट बॉडी. मानो कि इधर एक टेबल है, ये टेबल है, ये एक पेन है, इट इज इन रेस्ट. क्या अगर हम फोर्स लगाए क्या ये क्या इसको मूव कर सकेगी ना हम लोग? सो क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी और ए रेस्ट बॉडी. आया समझ में? पकड़ में आ रहा है कि नहीं? पूरा फील करो चीज को. फोर्स और क्या कर सकते हैं? फोर्स कैन या इंक्रीज द स्पीड. मानो कि तुम साइकिल लेके भाग रहा है कि नहीं? साइकिल लेके जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, है ना? कोई बाइक लेके आ रहा है, खुद ना दे तुम्हारे पीछे में. हाँ, he collide you. A bike or a car, he collide you behind you intentionally. So obviously your speed will increase. Boom, है कि नहीं? पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो? So how it happened? That force can increase the speed of the body. आया समझ में? और देखो, मानो कि कोई हरभजन सिंह बॉल कर रहे हैं, इधर मानो कि धोनी बैटिंग कर रहे हैं, बॉल स्ट्राइक हुआ बैट में, कहाँ जाएगा वापस? देखो बॉल वहां से आ रहा था लेकिन इतना हिट किया उसको, वो वापस वही चला गया. इसका मतलब क्या है? फोर्स लगाया बोल कर क्या है ना? दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी ऑल्सो. कैन इट? है कि नहीं? कि फोर्स लगा तो डायरेक्शन में चेंज कर रहा है कि नहीं यहाँ पर? ऑब्वियसली. सो ये भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है फोर्स का. फोर्स और क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन भी कर सकते हैं. अगर इधर आया, हम इधर घुमा दिया तो क्या होगा? फोर्स क्या हो गया? बॉल उधर चला गया कि नहीं? दैट मीन्स व्हाट? दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी. आप लोग का मम्मी आटा बनाता होगा, रोटी बनाता होगा, परोठा बनाता होगा. सो यू कैन सी दैट व्हेन ही स्टार्टेड स्क्वीचिंग द फ्लोर विथ वाटर, व्हाट हैपेंड? इट चेंज द शेप. Even you are eating this center fruit is not a gum, again bubble gums or center fruits or whatever center fruit. So आप लोग जब इसको निकल कैसे करते हैं, फोर्स लगाता है, क्या होता है? वो लंबा होता है कि नहीं? फिर से इसको ऐसे ऐसे करते, क्या होता है? गोल हो जाता है. दैट मीन्स व्हाट? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑल्सो. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑल्सो. वेदर टेक ए बैलन, तो क्या होगा? आप फोर्स करो, क्या होगा? आप उसको दबा सकते हैं. दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी. समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है. बैलून इज सो इजी टू कंप्रेस. It required less force to change its shape. Instead, if you take a iron piece, अब लोहा का सामान लेगा, to change its shape, it need a tremendous amount of force. बहुत ताकत चाहिए उसमें, है कि नहीं? चाहिए कि नहीं? बार-बार लोहा के लेके मारना, टाक 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 टाक, तभी जगह ultimately you can change the shape of a iron body. समझ में आ रहा है कि नहीं? So these are the various things what a force can do. So let us revise it once again. What we come to know that, let me write it also for you. What does force do? Force can stop a moving body. Force can move a rest body. Force can increase the speed of a moving body. Force can change the direction of the direction of a moving body or rest body. Force can change the shape of a body. समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना सारा चीज़ है. So if it is come in your exam, what are the various applications and what are the various consequences of force? Can you write it down? Very good. Now let us go to the next point. I will note it down the various impacts or impact of force in our daily life. Okay? आप लोग स्प्रिंग देखा होगा. स्प्रिंग उठाने का क्या होगा? वो लंबा होता है. Your force can stretch the string. If you suppress, आप उसको क्लोज कर दे तो क्या कर रहा है? आप तो उसमें फोर्स लगा रहा है. Means in every aspect of life of our livelihood we are dealing with the force. किसी को मार रहा है, पीट रहा है, क्या कर रहा है? आप फोर्स तो लगा रहा है.
Means our life, if you compare each and every activities of our life, so it is totally depend upon the force that we initiating in our body, means in our lives. समझ में आएगी ना बात? Okay. तो ये interesting point है. So I will not make you note it down. Don't worry. Pause the video when the note comes and continue writing. After that, our next topic is balanced force and unbalanced force. What is, my dear? Balanced force and unbalanced force. What is it? Let us understand very deeply. Shall you understand? Very good. Come on, let us understand it. Now listen, some properties of force. What is force? जैसे हम लोग पढ़ा था ना, distance और displacement. The distance was scalar quantity, but displacement was what? Vector quantity. Scalar quantity means what? It has only direction, no direction. It has only magnitude, no direction. कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, घूम रहा है, कुछ नहीं पता. But displacement is what? Is a vector quantity. It means it has direction as well as magnitude. Similarly, force is also a vector quantity. Vector quantity means it has a direction. इसका क्या है? Direction है. इसका क्या है? Direction है और magnitude भी है. इसका मतलब है. It is clear? It has direction. That means what? That is what? Force has force has direction. Very good. Remember it. As well as what? Magnitude. Remember, it has direction as well as magnitude. Very good. Now our next formula is that हमको पता था कि डिस्टेंस कैसे निकालता था, है कि नहीं? सबका फॉर्मूला होता है फिजिक्स में. तो फोर्स का ये फॉर्मूला है. इफ यू वांट टू फाइंड द फोर्स ऑफ एनीथिंग, सो फॉर्मूला इज दिस वन. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. याद रहेगा चीज़ जो. दैट मीन्स ऑल्सो वी कैन से, अगर याद नहीं रहेगा कि F इक्वल टू क्या होगा, एम ए. अभी याद रहेगा. फोर्स इक्वल टू मा. याद नहीं रहेगा. मम्मी, मानो कि मम्मी घर में क्या करता है, तो तुम्हारा मम्मी घर में क्या करता है, सुबह उठ के खाना पकाता है, कपड़ा धुलाता है, आप लोगों को मारता भी है, पीटता भी है कि नहीं? है कि नहीं? तो कपड़ा धुलाने का कितना फोर्स चाहिए कि नहीं इसको? दिन भर तो फोर्स है, तो काम करते रहता है. कितना कुछ, सब्जी काटो फोर्स लगा रहा हो वहाँ पे भी, है कि नहीं? कपड़ा धुलाओ अभी फोर्स लगा रहा है. बेटा को पीटो तभी क्या फोर्स लगा रहा है? मई फोर्स लगाता है कि नहीं? तो वही यहाँ पे क्या लगा रहता है कि एफ मतलब माँ. हाँ, ये फोर्स इक्वल टू माँ. मम्मी याद रहेगा कि नहीं? मम्मी बहुत मतलब याद करने के लिए हम आपको ये चीज़ दिया, ट्रिक जो याद रहेगा. अगर बोल देगा व्हाट इज फोर्स इक्वल टू द फॉर्मूला फोर्स सर क्या बोला था कि मम्मी के बारे में कुछ बोला था. हाँ, मम्मी तो कपड़ा धुलाता है, बहुत फोर्स लगाता है कि नहीं? मारता भी है हमको, फोर्स तो लगाता है. ओ मम्मी माँ, कैसा रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? सो फोर्स इक्वल टू माँ. ये फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा. माँ याद है ना? ठीक है. एम है. एम मीन्स व्हाट? मास. A means what? Acceleration. So if any mass and acceleration given, then you can easily find the force. Then you can easily find the force of the particle or of the body. समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? Next है क्या है? What is the SI unit of force? Force का SI unit क्या होता है? हर सबका SI unit होता है कि नहीं? और force का भी SI unit होता है. What is the SI unit of this? That is Newton. NEWTON. But in short form what we write? We write as N. याद रहेगा? ये न्यूटन कहाँ से है, आपको वो भी समझेगा. आपको देखो, F मतलब क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज मास का यूनिट क्या होता है? द SI unit ऑफ मास इज व्हाट? kg. एंड SI unit ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अंडरस्टूड? तो देखो, फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए था? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं n. और कुछ नहीं है ये. कैसा फील हुआ किसने? बिकॉज इट विल टेक लेंथ सो मच टाइम, इज ना, टू राइट kg मीटर पर सेकेंड. कितना फोर्स लगा रहा है भाई तुम वो वॉल में? हम 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स लगा रहा है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं ना कि कितना ग्राम का दे रहा है? 5 ग्राम 10 ग्राम, है कि नहीं? तो किलोग्राम kg बोलते हैं ना ऐसे शॉर्ट फॉर्म में. तो इतना को, क्योंकि ये फोर्स किसने निकाला था? साइंटिस्ट क्या नाम था उसका? न्यूटन. सो ऑन हिज रेस्पेक्ट इसका यूनिट, डिराइव यूनिट को क्या बोला, क्या दे दिया? न्यूटन नाम दिया. उसका नाम को अमर रखने के लिए
द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज गिवन एज अ नेम ऑफ व्हाट? न्यूटन। याद रहेगा इस चीज को। व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है न्यूटन का। इतना बड़ा चीज ना लिखने का जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग एक ही लेटर यूज करते हैं, दैट इज व्हाट? n। आई होप यू कैन फील व्हाट आई मीन टू से एग्जैक्टली, इज नॉट इट? उसका नाम का रेस्पेक्ट से n को यूज किया है ताकि ये बार बार रिपीट ना करना पड़े, ये इजी हो सके फोर्स को डिफाइन करने के लिए। एंड सो वी यूज n एज ए नॉमिनेशन और एब्रिविएशन फॉर द SI यूनिट ऑफ द फोर्स। समझ में आया? Let me give some question so that let me see whether you can solve or not. The question based on force. Let's see, check it. Okay, fine. A boy pushed a container. Container means what? एक box मानो उसको, एक box है कि नहीं? वो प्रोड्यूस होना box और वही container है यहाँ पे। Container मतलब क्या? यहाँ पे container जो box एक्ट हुए यहाँ पे box। क्या ये boy pushed a container of mass 50 kg। कितना भारी था? मतलब कितना mass था उसका? तो मास और वेट अलग है, हम बोलेगा वो बात को भी। हाँ, मास इज डिफरेंट, वेट इज डिफरेंट। मास इज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। ओके, समझेगा वो भी नेक्स्ट चैप्टर में, ग्रेविटेशन में। तो उसका मास कितना था? 50 kg का मास था उसका। और इफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉक्स, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ बॉक्स का ठहरने के बाद? इट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू नीड टू फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय ऑन द बॉक्स। इजी है कि नहीं? करे थे? हाँ, सिंपल है कि नहीं? सोल्यूशन देखो, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। क्या गिवन है माय डियर? What is given? The mass is given. Mass of the container. How much? Mass how much? 50 kg. Very good. Very good. And what is the acceleration there? It is a 1.5 meter per second square. समझ में आया? Now we need to find what? To find what, my dear? Force applied. Force applied. है कि नहीं? तो we know, हम लोगों को मतलब मालूम था, we know that force equal to what? m है, mass into acceleration। the f equal to what? m कितना है यहाँ पे? 50 into a कितना है? 1.5। so when you multiply 15 5 75, 75 ये तो है 75, और ये जीरो था ना, जीरो लगा दो, 0.0 इतना न्यूटन। f is equal to 70 न्यूटन। पॉइंट का मतलब जीरो है, जरूरत नहीं है पॉइंट का, यूज नहीं है यहाँ पे। सो व्हाट इज द फोर्स माय डियर? इट इज योर 75 न्यूटन। एवरीबॉडी वुड गॉट आंसर। ओके, और ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूँ, आप लोग करना अभी, ठीक है? मानो कि उस कंटेनर का मास था 50 ग्राम। कितना अभी? सिर्फ 50 ग्राम है सिर्फ। और उसका एक्सेलरेशन था तुम्हारा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी निकालो क्या होगा उसका फोर्स। अंडरस्टूड? देयर इज अ स्मॉल कंटेनर एंड दैट कंटेनर हैज मास हाउ मच? 50 ग्राम ओनली। सिर्फ 50 ग्राम, बहुत छोटा छोटा सामान है, ठीक है? 50 ग्राम। सो एंड द फोर्स अप्लाइड वाज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी निकालो, आप क्या निकालोगे इसका? इसका निकालना होगा फोर्स अप्लाइड, इतने। आपको क्या करना होगा? अभी देखो, द मास इज गिवन इन ग्राम, यू हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू kg बिकॉज वी नो द SI यूनिट ऑफ मास इज नॉट ग्राम, इट इज kg। सो यू कैन नॉट फाइंड आंसर। अगर आप ऐसा कर दे 50 into 15, खत्म आंसर, गलत हो गया पूरा आंसर। समझ में आएगी नहीं? यू नीड टू कन्वर्ट इनटू द यूनिट ऑफ द मास। 50 ग्राम क्या है? या द मास इज 50 ग्राम, दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट द ग्राम इनटू kg। तो हमको पता था कि कितना ग्राम में 1 kg होता है। हाँ, 1000 ग्राम में 1 kg होता है। छोटा कौन सा है यहाँ पे? ग्राम छोटा है कि नहीं? तो छोटा से बड़ा में जाएगा। अगर छोटा से बड़ा में जाएगा तो डिवाइड होगा ना, इंटू होगा? डिवाइड होने वाला। दैट मीन्स व्हाट? कि 50 डिवाइडेड बाय 1000, ये तो होगा ना। तो अगर काटेगा तो कितना मिलेगा? देखो तो यहाँ पे जीरो काट दिया, ये जीरो काट दिया। ओके, अभी कितना होगा? 5 1 जा 5, 5 20, दैट मीन्स व्हाट? 1/20 kg। आया समझ में यहाँ पे? हाँ, दैट मीन्स योर मास इज 1/20 kg। इसको और कर सकता है। इफ यू डिवाइड हाउ मच विल गेट, डू यू नो? लुक हियर, 1 डिवाइडेड बाय 20, पॉइंट लगाओ, जीरो आएगा, फिर पॉइंट जीरो लगाओ, जीरो आएगा, या 5, मतलब 0.05। क्या आंसर आने वाला आपका? ये आपका मास है। देखो मास कितना मिला हम लोगों को? मास मिला हम लोगों को 0.05 kg। Either you write this one or you write 1/20 kg. It's meaning same. What is the acceleration given here? 15 meter per second square. That means 15 meter per second
square. So we can easily find the force applied. Is not it? Force applied equal to what? F equal to ma. That means m is what? M is equal to what? What is m here? 0.05. What is a? A is your 15. Very good. 15 5 जा 75. यही तो है ना. अभी तो दो पॉइंट का आगे पॉइंट था ना, 2 नंबर का आगे पॉइंट था, तो कितना होगा? यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा. That means F is equal to 0.75 Newton. I hope it is clear. It is clear. Very simple. Very tough or what? So simple था. चलो ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज लाता है. लाओ देखो समय. Let me bring the change. मानो अभी वही ए बॉय pushes a container of mass, मानो कि आप 5 kg. कितना है? हाँ, मास जो कितना अभी 5 kg. If अब थोड़ा चेंज करता है. अब थोड़ा चेंज करता है क्वेश्चन में, थोड़ा चेंज लाता है, वेरिएशन लाता है. आप लोग का दिमाग लगाओ यहाँ पर and try to solve it. It's a very nice question that I'm going to install here. So look here. A boy push a container, that was the box of mass 5 kg. Okay. If the box is moved from rest and finally obtain the velocity of what? Velocity of 6 meter per second in 3 seconds. Find the force applied by the boy. Applied by the boy on the box, on the container. करो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. I hope you can do. That is why I told you now that motion chapter is totally relevant your upcoming topic also. अगर वो चैप्टर क्लियर नहीं है तो ये तकलीफ होगा बहुत, और ये तकलीफ होगा तो आने वाला टॉपिक भी और तकलीफ होगा. That is why those who have not cleared that topic, please clear it up. Okay, the formula, the golden rules, the equation of motions are very important. A equal to V equal to U plus AT, S equal to UT plus half AT square, V square minus U equal to AS. These are very important golden formulas. Okay, very interesting. So very easy question, isn't it? So a box of a boy push a container of mass 5 kg. That means what is given here? What is given? Mass is given. Mass is how much? 5 kg. Any problem? And what is given? The box is moved from rest and finally obtain the velocity of 6 meter per second. That is what? Moved from rest. Initially क्या था? Initially rest था. That means 0 meter per second. And finally क्या हो गया? V कितना है इसका? 6 मीटर पर सेकंड. क्योंकि अभी डायरेक्टली एक्सेलरेशन नहीं दिया. इस क्वेश्चन में डायरेक्टली एक्सेलरेशन नहीं दिया गया. You have to find indirectly the value of acceleration, isn't it? And we know the formula. What is the formula of acceleration? Acceleration is equal to what? V minus U by T. हम लोग पहला चैप्टर पढ़ा था. And this way, if we get A somehow, we can easily predict the value of what? The force. हम लोग force का value को निकाल सकता है. इतना ही simple है क्वेश्चन. और time. The time is also given. What is time here, my dear? 3 seconds. Yeah, 3 seconds. So what to find, my dear? To find? Acceleration. We find force. Acceleration निकलने नहीं बोला है ना. Acceleration तुमको पहुंचना है गुवाहाटी, लेकिन रास्ता में तो तुमको तेजपुर मिलेगा ना, तो तेजपुर क्रॉस करके जाना पड़ेगा तुमको गुवाहाटी. ठीक है, तुमको तेजपुर जाने नहीं बोला ना, यहाँ पे ज़्यादा बोला ही क्या, तुमको जाने बोला कहाँ? गुवाहाटी. तो गुवाहाटी जाने के लिए तेजपुर जाना ही पड़ेगा. वो बोल के फायदा नहीं वहाँ पे. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली सेज टू फाइंड एक्सेलरेशन. इट इज़ योर कॉमन सेंस. यू नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन. विदाउट हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन वी कैन नॉट फाइंड द फोर्स. Clear? Same thing is we gone doing in this one. So therefore, so we know what? Therefore force equal to what? M into A. माथा गरम कैसे ये निकालेगा? A का फॉर्मूला क्या था? ये था कि नहीं? We just let us easily put it. A into A क्या था? A था तुम्हारा V minus U by T. समझ में आया कि नहीं? एक ही फॉर्मूला घुसा देता है. What is M? M is your 5 kg. What is V? V is your 6. What is U? U initially is what? 0. And time is what? Time is 3 seconds. Any problem?
वेरी गुड. सो 5 इंटू 6 माइनस 0 कितना होगा? 6 ही होगा, डिवाइडेड बाई 3. ऐसा कर लो, ऐसा भी कर सकता है, वन से भी कर सकता है. समझ में आया ना बात? जो 3 2 जा 6, दैट मीन्स व्हाट? 5 2 जा 10 न्यूटन. The force applied on the body is 10 Newton. I hope it is crystal clear. Very good, very good. So let me give one homework, and in the tomorrow class we shall discuss about the Newton's law of motion. Newton's law of motions. There is 3 laws of motion. First law, second law, third law. First law says the laws of inertia. और सिखाएगा, बढ़िया सिखाएगा. Laws of momentum क्या है उस बारे में सीखेगा. Third law है हमारा action reaction law. Every action has an opposite and equal reaction. Okay, fine, my dear. So, my dear, this is another important topic, the next topic of our NCERT book. That is what? Balance force and unbalance force. So, let us understand it very nicely. Balance force. क्या? Balance force. क्या है balance force? Let's understand it. Come on. Balance force is the equal force which is produced by the body as well as the object. समझे चीज़ को? ठीक है. तो now another question arises. Balance force. Come on, focus here, my dear. You will understand very nicely. Balance force. What is balance force? If the resultant of all the force acting on the body is 0, the force is called balance force. क्या समझ में आया? समझाओ तुम्हें थोड़ा सा. समझाओ. हाँ? देखो, suppose there is a wall. Consider this is a wall, and I am pushing it. ताकत तो लगा रहा है ना मेरा, है कि नहीं? और इसमें और सा फोर्स भी लग रहा है. ये वाल तो नीचे भी नहीं गिर रहे हैं ना, इसमें क्या ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स भी तो है ना. तो इतना सारा फोर्स लगने का बाद भी ये वहाँ पे ही है. इट इज़ नॉट मूविंग ए तील ऑल्सो. इट इज़ नॉट इवन मूविंग ए इंच ऑल्सो. समझ में आ रहा है कि इतना सारा फोर्स लगने के बाद में ये थोड़ा भी नहीं हिल रहा है. इसका मतलब क्या है कि सब बैलेंस, सब फोर्स जीरो नहीं हो गया, इसमें आपस में कट नहीं गया बैलेंस लोग. तो क्या माई फोर्स कैन नॉट ओवरकम द फोर्स ऑफ द वॉल. इसलिए क्या हुआ कि द वॉल इज नॉट मूविंग ए इंच. तो इट इज का एग्जाम्पल ऑफ ए बैलेंस फोर्स. ठीक है, समझ में आ रहा है? मानो कोई बड़े बहुत कोई यहाँ पे एक गाड़ी आ रहा है. आई वॉन्ट टू स्टॉप द कार. चल के आ रहा है, हम अभी स्टार्ट लगा देखें कर रहा है. कैन आई स्टॉप इट? बहुत अरे गाड़ी है कि नहीं, ताकत होगा उसमें, तो आई कैन स्टॉप इट. माई फोर्स इज नॉट इक्विवेलेंट द फोर्स टू द कार. उसका फोर्स ज़्यादा है, उसका फोर्स ज़्यादा है. ये मानो कि हम किसी एक हॉर्स है भाई, हाथी है, हाथी के गला में रस्सी बंध दिया, हम पकड़ रहे हैं भाई, जो भी तुम लोग पकड़ रहे ऐसे करके, हम रुकाएगा हाथी को. वो जा रहा है कि तुम रुका सके उसको? कैन यू स्टॉप इट? क्यों नहीं? कि तुम्हारा फोर्स हाथी का फोर्स का बराबर नहीं है. योर फोर्स एंड द एलिफेंट फोर्स इज नॉट इक्विवेलेंट. It can overcome your force. You cannot stop it. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हारा सिमिलरली आप एक वॉल को ठेल नहीं पा रहे हैं कि वॉल का जो ताकत है आपसे ताकत से कहीं ज़्यादा है, और आपका फोर्स क्या हो रहा है? बैलेंस हो जा रहा है. आपका फोर्स जो क्या हो रहा है? जीरो कट जा रहा है सब फोर्स. इट इज़ नॉट कमिंग इन एप्लीकेशन. यू कैनॉट सी द फोर्स. एक भारी वाला बॉक्स हम ठेल रहे हैं, तो मेरा फोर्स और बॉक्स का फोर्स क्या हो रहा है? बराबर हो जा रहा है. ये हिला नहीं पा रहा है. जब हम बॉक्स का फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएगा तभी हम बॉक्स को हिला सकेगा. एक हाथी को तभी हम मेरे सामने ला सकेगा जब मेरा ताकत एक हाथी से ज़्यादा ताकत हो जाएगा. एक गाड़ी को तभी रुका सकेगा जब गाड़ी से ज़्यादा एनर्जी मेरा पास होगा, या फिर हम भी एक गाड़ी लेकर टक्कर देगा उसको, ट्रेन लेकर टक्कर देगा उसको. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स. जो आपस में कट जाता है जो फोर्स, थोड़ा भी नहीं हिलेगा. इन दिस केस द मूवमेंट इज व्हाट? जीरो. That is why a very strong statement is been mentioned here. A balance force cannot move a stationary body. What I have said here? A balance force cannot move a stationary body. It means what? जो रुका हुआ सामान है उसको एक बैलेंस फोर्स क्या नहीं कर सकते हैं, उसको एक चूल तक नहीं हिला सकता है. मानो कि एक बड़ा वाला बॉक्स है, तिजोरी, यू वांट टू मूव इट. अब बहुत ताकत लगा रहा है, बट यू कैनॉट मूव इट. वाई यू कैनॉट मूव इट? कि आपका फोर्स और वो बॉक्स का फोर्स बराबर हो जा रहा है. आई मानो कि पूरा गैंग लेके आया है, चोरों का गैंग, और तिजोरी को लेने के लिए है. 4-5 आदमी ठेल रहे हैं उसको, तब तो हिला सकेगा ना. एकला क्यों हिला नहीं पा रहा था? क्योंकि बिकॉज द फोर्स इज वेरी लिमिटेड एंड द फोर्स बिकम इक्विवेलेंट. बट व्हेन 3 and 4 people come and they start pushing the treasure, so what happened? You can still
You can still move it. Why? How can you move it? Why you are able to move it? Because your 4 and 5 people's force overcome the force of the box and it become unbalanced. जब तक unbalanced नहीं होगा तब तक एक सामान को आप move नहीं कर सकते हैं. समझ में आ रही है ना बात जो? So same thing is here. And also it cannot, balance force cannot stop a moving body. Balance force cannot stop a moving body. कोई पूरा साड़ गोरू आ रहा है, bull आ रहा है. I want to stop it. If my force is not, my energy is not that capable, not that equivalent, I cannot stop that bull. और जो भी कार आ रहा है, जो भी आ रहा है, हम cannot stop कर रहे हैं कि मेरा balance कर लेते हैं मेरा लाभ को. समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो? So this is a very strong point. Remember this thing. What is balance force? That if the resultant of all the force on the body is 0, then the force is called what? Balance force. Now there is another point. What is unbalanced force? Definition थोड़ा change होगा. Definition सबको थोड़ा change होगा. If it is unbalanced force, how will you write? If the resultant of all the force acting on a body is non-zero, is not zero, is not zero, then the force are called what? Are called balance force. So ये क्या कर सकता है? It cannot नहीं, इसमें क्या होगा? It can. The force can. In this case, a unbalanced force can move a stationary body and they can stop a moving body. थोड़ा चेंज कर दिया, आपको डेफिनेशन किसका मिल गया? अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन आसानी से प्राप्त हो गया. इट्स क्लियर माय डियर? हाँ, इट्स क्लियर और नॉट? सो वेरी सिंपल. सो लुक हियर, अनबैलेंस मतलब क्या है? ये वो फोर्स है जिसमें इक्विवेलेंट फोर्स जो क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो. सपोज देयर इज अ बॉक्स, हमसे ठेल पा रहा है, दैट मीन्स व्हाट? द फोर्स इज नॉट जीरो, द रिजल्टिंग फोर्स इज नॉट जीरो. मेरा फोर्स ज़्यादा है बॉक्स से एंड आई कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ द बॉक्स एंड आई कैन मूव इट इजीली. आप ठेल रहे हैं, you can easily move it, isn't it? Because your force is more greater than the what? Gravity force, frictional force, and easily you can move it. समझ में आ रही है कि नहीं? एक चींटी क्या फुटबॉल को लात कर पाएगा, लात मार पाएगा? हाँ, क्यों नहीं? छोटा है बोल के वो इतना फोर्स नहीं है उसका, वो इतना फोर्स जनरेट नहीं कर सकते हैं. एक क्या मक्खी कर सके? मक्खी फुटबॉल को किक मार सके? नहीं कर सके. अभी आपको दिया है, मानो कि या और अंजलि को दिया है, मानो फुटबॉल किक मारने के लिए, मार सके? किक मारने सके? थोड़ा दूर हो जाएगा ना, 1 मीटर. हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्यों जा रहा है? बिकॉज एटलीस्ट तुम्हारा फोर्स, तुम्हारा पैर का फोर्स क्या कर रहा है? इट कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ द फुटबॉल. समझ में? रेस्ट फुटबॉल का ओवरकम कर पा रहा है. समझ में आ रही कि नहीं? अभी उसी जगह पे एक लोहा का बोल दिया सेम, मैंने कि सेम, मैंने लोहा का मतलब पत्थर माना, पत्थर सेम शेप का पत्थर है. नाउ कैन यू किक इट? ऐसे पकड़ो, मारो उसे करके दूर जाएगा. ज़्यादातर लगता तो हिले थोड़ा भी नहीं हिलेगा वो. वाई नो? शेप तो सेम है ना. फुटबॉल था यहाँ पे तुम्हारा क्या लोहा का ही बोले, पत्थर ही तो है. शेप तो सेम है, बट वाई यू कैन मूव ए फुटबॉल, वाई कैन नॉट मूव ए स्टोन? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. बिकॉज हाँ, मास, बिकॉज पत्थर का मास ज़्यादा होने का वजह से क्या होता है? उसका ग्रेविटी फोर्स भी ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा फोर्स होने की वजह से योर फोर्स कैन नॉट ओवरकम द फोर्स ऑफ द पत्थर फुटबॉल, लेकिन नहीं. तो यू कैन नॉट मूव इट ए इंच ऑल्सो, वेर एज यू कैन किक द फुटबॉल वेरी इजीली बिकॉज इट्स वेरी लाइट एंड आपका फोर्स उससे कई गुना ज़्यादा है. सो व्हेन यू कैन मूव समथिंग, दैट मीन्स व्हाट? यू हैव अप्लाइड व्हाट फोर्स? यू हैव अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. व्हेन यू कैन मूव समथिंग, व्हाट फोर्स यू हैव अप्लाइड? यू हैव अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. समझ में आ रहा है कि नहीं? और व्हेन यू कैनॉट मूव ए सब्सटेंस, दैट मीन्स व्हाट फोर्स यू हैव अप्लाइड? यू हैव अप्लाइड ए बैलेंस फोर्स. अभी मानो कि अभी देखो कोई फुटबॉल आ रहा है, ठीक है, तुम गोलकीपर है, ऐसा किक मारा है कोई, है कि नहीं? आप उसको रुका ही नहीं पाया, डायरेक्ट आप बॉल पकड़ा है, बॉल लेके आपको गोल पोस्ट में घुस गया डायरेक्ट. इसका मतलब क्या है? दैट बॉल का फोर्स तुम्हारा फोर्स से कई गुना ज़्यादा था, इसलिए तुम रुका भी नहीं पाए बॉल को, तुम बॉल के साथ उड़ गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इट इज अ केस ऑफ व्हाट? इट इज अ केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स. क्या है अनबैलेंस फोर्स? कि फोर्स बॉल का फोर्स बहुत ज़्यादा था. द फोर्स ऑफ द बॉल इज क्वाइट मोर लार्जर देन योर स्टॉपिंग फोर्स एंड हैंस इट थ्रो यू बिहाइंड द नेट. अगर मानो कि सेम केस में कोई किक मारा,
and you could easily stop that moving ball. That means what? You have applied a मूविंग बॉडी. समझ में, आप मूविंग बॉडी को भी स्टॉप कर सकता है अनबैलेंस फोर्स लगा के. वही बोला कि यहाँ पे दे कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी बट बैलेंस फोर्स कैन नॉट स्टॉप ए मूविंग बॉडी. समझ में आ रहा है मेरा बात? जो अगर आपको पास अनबैलेंस फोर्स है मतलब ज़्यादा ताकत है, अनबैलेंस मतलब क्या है? ज़्यादा. समझ में आ रहा है कि नहीं? बैलेंस मतलब बराबर. क्लियर होगी कि नहीं? समझ में आ रहा है ना बात जो? तो ये चीज़ को ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. और भी एग्जांपल है आपको दूंगा मैं आपको. जस्ट फोकस्ड हियर. वेरी नाइस. So I hope the balance force and unbalanced force is very clear.